Assalamualaikum everyone. Welcome to another episode of Daira Podcast. I am really happy to be bringing a new topic over here, and I know कि last time से अब काफ़ी टाइम हो गया है, मगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नया content है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नए topics हैं, and we also have new guests with us. So I really hope that you guys find these podcasts interesting and you guys can actually relate more with the guests that we bring in, and this is helpful for everyone watching the audience. So once again, thank you guys so much for attending this podcast on a Monday morning. But without any further ado, let's actually get started. We have a very exciting topic that we wanted to discuss today. But before that, let's do a round of introductions. So, as you all know, my name is Maheen Raz Qureshi, and I am your host, also a senior UX designer here at Venture Dive. And Temu, please begin with your introduction. Yeah. First of all, thank you for having me on the podcast. So, guys, my name is Tamur Hassan. I am a product designer too at Motive. And yeah, I've been designing for all of my career, currently working on trucking, ELDs, and whatnot. But today, the topic we are discussing is something which is my interest outside my work and all. So, yeah, let's jump in. Awesome. So I'm gonna share my screen and we are going to now start talking about the topic. So we have a rather, like I said, interesting topic that we wanted to discuss today, which is the basics of game design. I'm sure that a lot of the people who are watching this podcast, उनमें से काफ़ी ऐसे लोग होंगे who play games and are really interested and intrigued कि games किस तरह से design होते हैं, उनका UI किस तरह से होता है, UX किस तरह से होता है, if I want to be a game designer, what are the things that I need to keep in mind? And Temur actually has done quite a bit of research on the topic as well. So, Temur, would you first like to just get the topic started, just introduce the topic to our audience? Yeah, sure. So basically, today we'll be discussing what are the basics of game design and what we need to understand to learn as a new game designer. किस तरह होता है. So basically, now today we are focusing mainly on the UI of the game design, not going on the technicalities, not going on the details कि कौन सा gaming engine use करना है, क्या करना है, Unity 3 पे बनाना है या किसी और पे बनाना है. So today we'll just discussing कि as a UI designer, as a visual designer, आप लोग किस तरह एक basic आइडिया ले सकते हो कि मुझे एक गेम डिजाइन करने की क्या चाहिए होता है. सो हम आज बेसिकली इसी पे बात करेंगे. तो या Awesome. So, Temur, I think the first question that I have for you is why game design? Like, ये एक ऐसा topic क्यों है जो आपको सबसे ज़्यादा interest करता है and you wanted to give a podcast about this? Why is this interesting? सो क्यों इंटरेस्ट करता है. इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. सो बेसिकली हम लोग सारे एज अ चाइल्ड हम सबके पास या तो बचपन में अटारी होगा या प्ले स्टेशन 1 होगा या निंटेंडो होगा. हम लोगों ने कोई ना कोई किसी प्लेटफॉर्म पे गेमिंग की होगी और ऑफ कोर्स GTA वाई सिटी तो सबने खेला होगा. सो फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग यूजिंग कंप्यूटर्स. सो मैं अपने शुरू में तो अपने कजिन्स को देखता था, वो लोग गेमिंग करते थे. अपने भाई को मैं देखता था, ही इज लाइक अ प्रो गेमर. आई एम नॉट दैट गुड. आई ट्राई टू बी गुड एट गेमिंग, बट देन जब मैंने स्टार्ट किया गेम खेलना, सो आई हैव ऑलवेज बीन इनटू द रेसिंग गेम्स एंड व्हाट नॉट. बट खेलने से ज्यादा एक आइडिया मुझे हमेशा ही फैसिनेट करता था कि यार हाउ डू दीज गाइज डिजाइन ऑल दीज थिंग्स. कैसे करते हैं लाइक, क्योंकि गेम इज कम्प्लीटली अ सिनेरियो बेस्ड थिंग. इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर के 1 2 3 4 क्लिक और ये होगा. इट्स लाइक कि आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा. सो प्रोबेबिलिटी और उसके अलावा उसमें बहुत सारे ना केसेस हैं. सो इस चीज ने मुझे बड़ा एक्साइट किया और फिर देन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, डिजाइन की तरफ मेरा फोकस होता गया. सो देन ये मैंने सोचा कि यार मैं डिजाइन गेम के डिजाइन एस्पेक्ट को देखूंगा, नॉट द कोडिंग एस्पेक्ट, नॉट द प्रोडक्ट एस्पेक्ट कि कैसे होता है. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग दिस थिंग आउटसाइड माय रेगुलर जॉब कि गेम्स किस तरह डिजाइन होते हैं. सो या Awesome, awesome. That's great. Glad to hear that. And Temur, I think मेरा वही next question अब ये होगा कि मतलब किस तरह से like you taught yourself or did you like what since you were so interested in game design तो आपने किस तरह से इसको approach की थी इसकी learning? लर्निंग मैंने ऐसे अप्रोच की थी. फर्स्ट टाइम आई गॉट अ चांस टू डिजाइन अ गेम.
फोर्थ सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मिला था एक सब्जेक्ट में कि उसमें हमें कोई गेम डिज़ाइन करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग। तो तब तो मैंने टिक टैक टू डिज़ाइन किया था अपने दोस्तों के साथ। बट देन वो इतना विजुअल नहीं था वो गेम। वहां से फिर डायरेक्ट बचपन से चीज थी कि यार गेम करना है देखना है। तो मैंने गूगल किया, सर्च किया बेसिकली कि यार कैसे होता है, कौन से इंजन्स होते हैं, और फिर कुछ फोरम्स पे फेसबुक पे डिजाइनर्स को देखा। ईए में कुछ डिजाइनर्स थे, कुछ पाकिस्तान बेस्ड डिजाइनर थे, उनको फॉलो करना शुरू किया कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सो उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स कि यार ये यूआई किस तरह डिजाइन होती है, सेफ एरिया क्या होता है, प्लेइंग एरिया क्या होता है, गेम किस तरह होता है, आपको ऑब्जेक्ट्स किस तरह सेट करने होते हैं, आपको विजुअल किस तरह रखने होते हैं। सो वहाँ से यूट्यूब पे वीडियोस देख के, दोस्तों से पूछ के, आर्टिकल्स पढ़ के, और वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना शुरू की। और खुद भी गेम खेल के और उससे ब्रेक डाउन करना शुरू किया कि अच्छा यार ये हो रहा है तो ये है। तो जो मैं पढ़ता था वो मैं गेम्स के अंदर ब्रेक डाउन भी करता था ताकि और उसका एक सेंस बन सके नॉलेज का। Yeah, I think that is the best way to learn as well. Like that is what I've also done. So I'm also like a big like gaming fan, and मेरे नाइस। लिए भी ये topic एक ऐसे ही था हमेशा से कि I really हमेशा से I was very interested in it. I think I had one course in when I was doing my bachelor's in which we got into game design, and we learned the basics, and but yeah, कि of course things have so drastically changed ever since then. Like just the way that games are designed and they're made, it's changed so much. It's changing so much every year that trends and everything that you हाँ, need. दैट टू। So ऑब्वियसली ट्रेंड्स वगैरह सारी चीजें चेंज हो रही हैं। गेमिंग इज नाउ लाइक मोर एंड मोर रियलिस्टिक, क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं मतलब फुल टाइम एक गेमिंग कर रही यूनिवर्सिटी के टाइम पे बैक इन 2016 2018। अब तो जॉब के साथ टाइम ही नहीं मिलता। सो अब से आज के गेम्स चेंज हो गए, नाउ इट्स मूविंग टू वीआर एंड ऑक्यूलस एंड ऑल द वर्चुअल रियलिटी। तो सीन तो ऑन है गेमिंग का, इंडस्ट्री का भी, और यहाँ पर भी टूर्नामेंट्स वगैरह के हिसाब से भी। सो या। awesome. Okay, so let's actually get into the technical stuff of this now. Okay, and this is again for someone जो बिल्कुल maybe नया है and actually isn't interested in designing games. So there are a couple of things that they will have to keep in mind. Like let's talk about like dimensions. What are the different dimensions? The aspect ratios. What are the layout? What is the layouting that you need to keep in mind? इस तरह की कुछ टेक्निकल चीज़ों को आप टच करते हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट कि उसका स्ट्रक्चर बिल्ड किस तरह से होता है व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ गेम फॉर ए मोबाइल ऐप में भी। फॉर श्योर। सो जिस तरह ये आप लोगों को सामने दिख रहे होंगे साइज ऑफ कैनवस रखे हुए हैं। सो बेसिकली गेमिंग दो तरीके से डिजाइन होती है। इनिशियली ट्रेडिशनली गेम हमेशा हम लोग टीवी पे खेलते थे या कंसोल पे खेलते थे या पीसी पे खेलते थे। तो वो तो हमेशा हमारे पास एक लैंडस्केप फॉर्मेट में होता था। बट नाउ सिंस मोबाइल फोन्स हैं, लाइक फ्रॉम अ लास्ट डेकेड, मोबाइल गेमिंग इज नाउ अ बिग थिंग। तो अब हमारे पास वर्टिकल गेमिंग्स भी होती हैं, वर्टिकल गेम्स भी होते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बेसिकली जो मेन साइजेस होते हैं, not going into a much detail, it's this podcast is just for the basic idea that आपको जो starting point मिल जाएगी क्या करना है। So हमारे पास common जो sizes होते हैं वो these are like 5 sizes। 5 sizes भी नहीं बोलेंगे, आप इनको ratios कहेंगे, क्योंकि आप हमेशा रेशो में गेम डिजाइन करते हो। बिकॉज यू नेवर नो कि आपका जो एंड यूजर है उसकी स्क्रीन का साइज क्या है। यू नेवर नो कि वो 9020 या 1080 पे खेल रहा है, वो 4K स्क्रीन पे खेल रहा है, वो किसी छोटे स्क्रीन पे खेल रहा है। बस तो इसलिए जब आप गेम डिजाइन करते हो तो आप एस्पेक्ट रेशो के अंदर करते हो कि आपकी गेम या तो वर्टिकल होगी या तो हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल के मेन साइजेस हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल गेमिंग हॉरिजॉन्टल में होती है हमेशा। सो अगर आप आईपैड के लिए डिजाइन कर रहे हो तो आप 4:3 में डिजाइन करोगे। अगर आप छोटे फोन्स के लिए कर रहे हो जो लोअर एंड स्मार्टफोन्स हैं, क्योंकि पबजी इज अ गेम जो तकरीबन हर फोन पे चलती है, तो वो 3.2 रेशो पे हुई हुई है, मिनिमम एस्पेक्ट रेशो पे, क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाती है। वो भी हम लोग आगे डिफाइन करेंगे कि किस तरह एक्सपेंड होती है, लेकिन वो मेन जो उसका कैनवस बनता है वो 3:2 पे बनता है। उसके अलावा कुछ बड़े एंड्रॉइड फोन है, हाई एंड स्मार्टफोन्स हैं, फ्लैगशिप टाइप्स, वो 16:10 रेशो पे काम करते हैं। टैबलेट 17:10 रेशो पे काम करते हैं। और अगर कोई बड़े फोन हैं या वाइड स्क्रीन है, अगर आपको अपनी गेम को पीसी पे भी लेके जाना है तो फिर आप 16:9 जो एक स्टैंडर्ड एक हमारा रेशो होता है फॉर लाइक लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल गेमिंग, उसके ऊपर आप डिजाइन करते हो। तो इस पूरे सिनेरियो में आपको ये चीज याद रखनी है, इट्स नॉट अबाउट स्क्रीन साइजेस, इट्स नॉट अबाउट द पिक्सल वर्क, इट्स जस्ट अबाउट कि आपको अपना गेम एक ऐसे एस्पेक्ट रेशो पे रखना है जो मैक्सिमम स्क्रीन और मैक्सिमम ऑडियंस के लिए यूजेबल हो और उनके लिए अच्छा हो खेलने के हिसाब से प्लेइंग एक्सपीरियंस। और उसके अलावा
अगर आप बात करें जिस तरह हमने ये चीज़ की थी कि यार 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप गेम डिज़ाइन करते हो पोर्ट्रेट में या आप गेम डिज़ाइन करते हो लैंडस्केप में। तो सबसे पहले हम लोग पोर्ट्रेट की बात कर लेते हैं क्योंकि लाइक आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों ने पोर्ट्रेट गेमिंग की है, लेकिन अगर आप हम अपनी मॉम्स को देखें या अपने एल्डर्स को देखें तो वो कैंडी क्रश टाइप्स गेम्स खेलते हैं। और इस तरह की जो गेम्स होती हैं या सेगा टाइप्स जो गेम्स होती थी पहले, पज़ल बबल टाइप्स, और वो पोर्ट्रेट में होती हैं हमेशा। तो पोर्ट्रेट में जब आप गेम खेलते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें कैसी कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे अरेंज करनी है, बिकॉज़ इन द एंड अगर आप यूएक्स डिज़ाइन करियर से हैं या प्रोडक्ट करियर से हैं, तो आपके यूज़र की कन्वीनियंस आपके लिए मैटर करती है। तो उसके लिए आपको एक तरीक़ेकार होता है व्हिच इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू डू थिंग्स, कि आपको कौन-सी चीज़ स्क्रीन में कहाँ रखनी है। सो सबसे पहले उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके जो मेन कंट्रोल्स होते हैं हमेशा वो हर गेम में आपके फिंगर्स की रीच में होने चाहिए। तो वर्टिकल में अगर आप बात करें तो आपकी गेम कंट्रोल हमेशा बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे होंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, और वर्टिकल गेमिंग में अक्सर ये होता है कि आप पूरे स्क्रीन पे कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट Hmm. मेन कंट्रोल हमेशा आपके डिज़ायर्ड जो करते हैं वो बॉटम पे करते हैं। उसके Right. अलावा अगर कोई गेमिंग एड है, द प्रीवियस स्लाइड प्लीज़। अगर कोई गेमिंग एड है, अ, उस पे अगर हम बात करें तो वो हमेशा ऐसा होगा कि वो आपके हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे आएगी और सेंटर में आएगी, कि अगर कोई आप एम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कोई अगर आप कोई शॉट मार रहे हो और उसकी पावर है, कुछ होता है, इस टाइप के गेम जो होते हैं, तो वो हमेशा वहाँ आएगी। मेन मेन्यू कंट्रोल्स आपके हमेशा टॉप लेफ्ट पे आते हैं, जो हमेशा हमारे फ़ोन्स में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, और उसके अलावा अगर कोई लीडर बोर्ड है या कोई स्कोर है, तो वो टॉप राइट पे होगा और वहाँ से सारी स्कोरिंग होगी। और बीच का एंटायर कैनवास इज़ फॉर द गेम प्ले एंड व्हाट नॉट। सो Hmm. दैट्स फॉर द पोर्ट्रेट गेमिंग। Awesome. Let's also talk about like landscape gaming, since that's also a pretty common layouting in हाँ, memory. फॉर श्योर। अच्छा, इसमें लैंडस्केप गेमिंग में ना हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो मैं किसी टच स्क्रीन डिवाइस पे खेल रहा हूँ, निंटेंडो स्विच है, या तो आईपैड है, या पीएसपी है, बाय द वे पीएसपी अब इतना कॉमन नहीं है, Hmm. या तो मैं किसी भी स्मार्टफ़ोन पे खेल रहा हूँ, तो वो 2 चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से हमें चीज़ें सेट करनी होती है। तो ये जो आपके सामने एक विजुअल है, इसमें हमने दोनों चीज़ें बताई हैं, कि अगर आप टच इंटरफ़ेसेस के डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप बेसिकली अपने किसी मैनुअल इंटरफेस को डिज़ाइन करें जिसमें आपके पास पेरिफेरल्स हैं, आपकी जॉयस्टिक है, आपका कीबोर्ड है, माउस है, तो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं किसी पीसी गेमिंग के लिए, जो किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू चलता है कंसोल गेमिंग के लिए, तो आपके पास हमेशा आपकी जो गेमिंग एड होगी, कि आप कौन-सा वेपन यूज़ कर रहे हो, आपकी लाइफ़ कितनी है और किस तरह की चीज़ें, वो हमेशा आपके बॉटम ऑफ द स्क्रीन के सेंटर में आएँगी। उसके अलावा अगर आप टच इंटरफेसेस के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपकी गेमिंग एड तो वहीं रहेगी, लेकिन आपके स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट पे कंट्रोल्स होते हैं, आपके टच कंट्रोल्स। एक Yeah. तरफ से आप गन एम करते हो और एक तरफ से आप फायर करते हो, जस्ट टॉकिंग अबाउट सीओडी एंड पबजी, बिकॉज़ दीज़ आर 2 वेरी कॉमन गेम्स इन मोबाइल। उसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनली बात कर लो दोनों इंटरफेसेस पे, तो आपका जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है गेम की, जिसमें रैंक होता है, स्कोर होता है, वेपन कौन-सा है, कौन से लेवल पे हो, वो हमेशा स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे आपने डिज़ाइन करना है। और उसके अलावा अगर आपको मेन मेन्यू में जाना है, कुछ भी करना है, या अगर कोई बंदा पॉज़ कर रहा है, गेम कुछ भी हो रही है, तो आपको हमेशा स्क्रीन के टॉप पे और मिडल में वो कंट्रोल्स दिखाना है। आपको कभी भी पूरी स्क्रीन फिल नहीं करनी है अपने कंट्रोल से। बिकॉज़ उसमें अक्सर लोगों को ये एंग्ज़ायटी होती है, अगर मैं यहाँ टच करूँगा तो मेरी गेम रिज़्यूम ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। अगर कोई गलती से टच हो जाए, तो आपका क्योंकि बीच के जो एरिया होता है उसमें अक्सर भी बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं गेम को नेविगेट करने के, हिडन कंट्रोल्स होते हैं, तो उन पे टच ना हो। तो इसलिए आप हमेशा गेम के जो कंट्रोल्स होते हैं वो टॉप पे रखते हो और मिडल में रखते हो। उसके अलावा कुछ प्लेइंग एड्स होती हैं हमारे पास गेम में, जिस तरह मैप होता है, और आपको क्या आपकी लाइफ़ क्या चल रही है, आपका मैप क्या है, आपके इंडिकेटर्स गेम के क्या हैं, वो हमेशा टॉप राइट पे आते हैं। सो दैट्स हाउ यू डिज़ाइन और प्लॉट द इन्फॉर्मेशन ऑन द गेमिंग कैनवास इन बोथ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप गेमिंग। राइट। आई थिंक इसमें काफ़ी इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया होगा होपफुली टू आवर व्यूअर्स कि लैंडस्केप मोड में टैपेबल एरिया क्या होता है, राइट? एंड जनरली लाइक द सिंस यू यूजिंग द फोन विद बोथ हैंड्स, व्हिच मीन्स दैट ये जो गेम कंट्रोल्स एंड द गेम एड दैट तैमूर हैज़ मेंशन्ड, these are the ones that are very easily reachable with your thumb, with either of your thumbs. But generally, like, could you talk about the reason why things like the main menu and important information and all these are a little bit out of reach probably हुँ। for the thumbs? सो इसलिए होता है, आउट ऑफ रीच इसलिए होता है कि मेन मेन्यू और ये सारे ऑप्शन जो हैं, तो ऐसा आप टैप करते हो तो आप सडनली आपकी गेमिंग स्टॉप हो जाती है और फिर मेन्यू खुल जाता है या कुछ खुल जाता है। तो Mhm. अगर ये आउट ऑफ रीच होगा आपके थंब पे,
सो इससे ये मेक श्योर किया जाता है कि यार कभी गलती से, क्योंकि गेमिंग इट्स ऑल अबाउट एड्रेनलिन रश, और आप थ्रिल में होते हो, आप जल्दी जल्दी चीजें डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, तो अगर आपकी थंब की रीच में होगा तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि आप अक्सर औकात उसको क्लिक कर दोगे, गेम पॉज हो जाएगी, और आप लाइव गेमिंग कर रहे हो और आप Hmm. मेन मेन्यू में चलेगा कुछ होगा, तो फिर आपकी टीम जो आपको सुनाएगी पीछे से, कोई अलग डिबेट है, उसके बाद में बात करेंगे किसी और दिन। तो इस तरीके से हम लोग उसको आउट ऑफ रीच रखते हैं हमेशा, और हमेशा इनको आउट ऑफ रीच रखने का एक और मकसद ये भी होता है कि यार ये तभी क्लिक हो जब इनकी नीड हो, क्योंकि Yeah. इनको टैप करने के लिए, क्लिक करने के लिए आपको एक्चुअली एफर्ट करनी पड़ती है, आपको अपने हाथ का एंगल चेंज करना पड़ता है। लाइक मैंने डिवाइस पकड़ी हुई है, मैंने यूं Hmm. पकड़ा हुआ है, तो मुझे एक्चुअली चेंज करके यूं जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स द एक्शन इज इंटेंडेड। मैंने Hmm. गलती से टैप नहीं किया, तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए और गेमिंग को स्मूथ एक्सपीरियंस करने के लिए इन चीजों को डिलिबरेटली आउट ऑफ रीच रखा जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ डिजाइन। Cool, cool. So thanks for explaining that. I think it was very well explained. थैंक यू। But इसके बाद, let's also talk about like so you've already spoken about like the structure and where everything needs to be placed. अब scaling modes के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. So just Yep, sure. So basically scaling modes क्या होते हैं? This is a bit of technical term, लेकिन मैं इसको जितना easy हो सके उस तरीके से explain करने की कोशिश करूंगा। So इस केस में हमारे पास क्या होता है कि स्केलिंग मोड में हमारे पास बेसिकली, जिस तरह मैंने बताया, कि हमारे पास तीन डिफरेंट साइजेस होते हैं गेम के। एक, मेनली तीन होते हैं, 3:3:2, 4:3 एंड 16:9, विच इज वाइड स्क्रीन गेमिंग। अब करना क्या होता है आपने कोई भी गेम डिजाइन करते हुए, कि आपका जो मेन गेमिंग एक्शन हो, आपके, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो तो आपकी जो एम है और आपका जो एनिमी है, वो आपको इन अ वे डिजाइन करना है कि वो हमेशा मिडल ऑफ द स्क्रीन हो। सही है? mm, क्योंकि मोस्टली जो मैं बात कर रहा था कि हम, जो जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि इट्स नॉट अबाउट पिक्सल साइज, इट्स अबाउट द रेशियो साइज। तो आपको रेशियो में चीजें रखनी पड़ती है, और हमेशा आपको इस पूरे कैनवस को डिफाइन करने का मकसद ये है कि आपको हमेशा मेन गेमिंग एक्शन अपना बीच में रखना है, और साइड में गेमिंग वर्ल्ड होगा, कि अगर आप किसी एनवायरनमेंट में, अगर आप लेट्स से नीड फॉर स्पीड खेल रहे हो, तो साइड में ट्रैक है, ट्रैक वॉल्स हैं, दूसरी mm, चीजें आ रही हैं, कंट्रोल्स आ रही हैं, लेकिन आपका मेन गेमिंग एक्शन हमेशा मिडिल ऑफ द स्क्रीन में होता है, आपकी कार हमेशा मिडिल में चल रही होती है। सो इससे फायदा ये होता है कि अगर आपकी स्क्रीन इतनी वाइड हो, तो वो हमेशा आपका जो मेन एक्सपीरियंस है वो बीच में रहेगा और साइड में गेमिंग वर्ल्ड रहेगी। अगर आप छोटी स्क्रीन पे खेल रहे हो तो वो उसको श्रिंक करेगा, लेकिन स्टिल वो आपका अगर प्लेयर है, या जो आपकी मेन गेमिंग एक्सपीरियंस है, वो हमेशा सेंटर में रहेगी, तो आपकी उससे गेमिंग हर्ट नहीं होती, वो हमेशा सेंटर में रहती है। तो दैट्स वाई गेम को डिजाइन करते हुए आपको हमेशा एक्शन जो होता है अपना, वो भले आप वाइड स्क्रीन गेमिंग डिजाइन कर रहे हो, तो आपको 3:2 में ही रखना होता है और स्क्रीन के सेंटर में रखना होता है। दैट्स हाउ यू डिफाइन द स्केलिंग मोड। और स्केलिंग मोड का ताल्लुक जो होता है वो गेम को जूम इन जूम आउट करने से भी होता है, जो हम आगे right. डिस्कस करेंगे। Yeah. तो लेट्स से अगर मैंने गेम डिजाइन की है, जो मैंने ओरिजिनल डिजाइन की थी 3:2 के अंदर, और अब मैं उस गेम को खेल रहा हूँ किसी वाइड स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर, तो वो क्या करेगा कि वो मेरी स्क्रीन को इन अ वे जूम कर देगा, या उसको स्क्रीन के बीच में रखेगा, बाकी लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम पे मेरे पास ब्लैक स्क्रीन आएगी। Mm, तो ये डेवलपर के ऊपर होता है, वो स्क्रीन अगर डिफरेंट, आपकी गेम अगर डिफरेंट स्क्रीन पे रन हो तो वो किस तरह बिहेव करे। तो अगर स्केलिंग मोड आपकी जो है, बेसिकली स्केलिंग मोड को कहते हैं लेटर बॉक्स स्केलिंग। तो लेटर बॉक्स स्केलिंग में आपकी गेम कभी भी जूम इन नहीं होती, आपकी गेम हमेशा अपने सेम साइज में रहती है, स्क्रीन का साइज जितना भी बड़ा हो जाए, बड़ा होगा तो ज़्यादा वो साइड में और ब्लैक एरियाज कर देगी, छोटा स्क्रीन साइज होगा तो वो आपका एक्शन तो डेफिनेटली बीच में ही है, तो वो हमेशा बीच में रहेगा। सो ये एक तरीका होता है गेम को, कैनवस को सेट करने का, गेम के एक्सपीरियंस को सेट करने का, जिसको लेटर बॉक्स स्केलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक है नॉन यूनिफॉर्म जूम स्केलिंग। तो इसमें क्या होता है, अगेन जो मैंने एग्जांपल दी थी कि गेमिंग एक्शन हमेशा बीच में रखना चाहिए, तो अगर आप देखें, विच इज लाइक वेरी ब्लर राइट नाउ, कि आपका वेपन और आपका एम बीच में है, साइड में आपका पूरा गेमिंग वर्ल्ड है, लेकिन इस एग्जांपल में आपको थोड़े मैसेजेस बाहर दिख रहे हैं, लेकिन जब आप एक गेम डिजाइन करते हैं, दिस इज जस्ट एग्जांपल, तो आप मैसेजेस भी अंदर रखते हैं अपने। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस हमेशा सेंटर में रहता है, आपकी गेमिंग वर्ल्ड हमेशा साइड में रहती है, तो आपकी गेम हर्ट नहीं होती। तो ये दो स्केलिंग के तरीके होते हैं कि जब आप गेम डिजाइन करते हैं फॉर द डिफरेंट स्क्रीन साइज, तो आपको ये भी डिसीजन करना होता है कि यार मेरी स्केलिंग किस तरह होगी। और स्केलिंग पे जब आप ऑप्ट ऑन करते हैं तो आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत बहुत डिजाइन में भी बहुत कंसिडरेबल होना पड़ता है कि आपका मेन जो सारा एक्शन हो वो 3:2 में रहे। दैट्स वाई मोस्टली आजकल तो स्केलिंग मोड हमेशा नॉन जूम और नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन पहले अगर आपने खेला हो विंडोज पीसीस के टाइम पे, पेंटियम्स के टाइम पे, तो गेम हमेशा स्क्रीन के बीच में रह जाती थी, बिकॉज डेवलपर डज नॉट वांटेड टू पुट मोर एफर्ट इनटू द गेमिंग, दे जस्ट वांट टू द प्रोडक्ट टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। सो या, दैट्स आर right. द स्केलिंग मोड्स।
Okay, so I think that is really interesting, and I think इससे again जो चीज़ के बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे about layouting and where things need to be placed, वो काफ़ी हम्म, ज़्यादा clear हो जाएंगे अब when seeing these actual examples. I hope this really helps out our viewers as well. And now let's move forward. So we've already spoken about layouting and the technical things that go behind actually designing a game. And now let's talk about the things that go into making this game. Like, what are the different elements, things that you are seeing in your game visually, things that you interact with, things that are just there in the background. So let's हम्म। touch upon those as well. Let's start by the space stories that you've mentioned over here. सो बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो गेमिंग एक्सपीरियंस होती है उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो गेम स्टोरी एलिमेंट्स को कहते हैं, और एक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो गेम स्पेस एलिमेंट्स होते हैं। तो इनका बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, बेसिक सा डिफरेंस होता है कि गेम स्टोरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं डिजाइन के या इंटरेक्शन पॉइंट्स होते हैं जिनको यूज करके आपकी गेम की स्टोरी चेंज हो सकती है, आपकी गेम की प्रोग्रेस चेंज हो सकती है। जिस तरह मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है गेम स्टोरी एलिमेंट्स के अंदर कि अगर आप सीओडी खेल रहे हो या पबजी खेल रहे हो, आप थर्मल क्लासेस यूज करते हो, तो ये वो वाले यूआई एलिमेंट्स हैं, ये वो डिजाइन एलिमेंट्स हैं, इंटरेक्शन एलिमेंट है कि जिसके थ्रू आप यूज करके अपनी गेम में अपने प्लेयर की या अपने प्रोग्रेस को एनहांस कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हो। तो थर्मल से हमें ये फायदा होता है बेसिकली कि आपको छुपे हुए ऑब्जेक्ट दिखते हैं और हीट के थ्रू आप चीजें कर सकते हो। तो ये वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली गेम की स्टोरी को भी ड्राइव करते हैं कि इनको यूज करने से स्टोरी भी चेंज हो सकती है, इनको यूज करने से आपके प्लेयर को एडिशनल पावर भी मिल सकती है और व्हाट नॉट। Hmm. उसके अलावा चीजें होती हैं गेम स्पेस एलिमेंट। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो नॉट नेसेसरली आपकी गेम की स्टोरी चेंज करें, लेकिन ये आपको इन अ वे गेम में प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इनको अगर ये ना भी हो तो इनसे आपकी गेम की स्टोरी चेंज नहीं होगी, आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा गेमिंग पे। दे आर जस्ट देयर टू हेल्प यू। Like एग्जाम्पल लाइक अ करेक्टर हेल्प। तो इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ये फॉर्मूला 1 2022 का एग्जाम्पल है कि इसमें आपको रेसिंग लाइन दिखती है। अगर character. रेसिंग लाइन वहां नहीं हो दैट डज नॉट मीन कि आप गाड़ी नहीं चला सकते ट्रैक पे। रेसिंग लाइन का मकसद ये होता है कि अगर आप इस लाइन पे गाड़ी चलाओगे तो यू विल अचीव द मैक्सिमम स्पीड। तो Hmm. इन एलिमेंट्स के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हो तो अच्छा है। लेकिन स्टोरी एलिमेंट अगर ना हो तो उनसे आपकी गेम इफेक्ट हो सकती है, आपकी प्रोग्रेस इफेक्ट हो सकती है। सो दीज आर लाइक टू मेन एलिमेंट्स, स्पेस स्टोरी, और इन्हीं को ही फिर हम आगे जाके और फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं जो चार इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। Awesome. सो अब हम बात करते हैं, स्पेस स्टोरी तो हमने डिस्कस कर लिया। ये अब हम बात करते हैं उन फोर डिफरेंट एलिमेंट्स की जो स्पेस स्टोरी एलिमेंट्स की इनहेरिटेंस में आते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है नॉन डाइजेक्टिक एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट होते हैं कि जो गेम की स्पेस का भी पार्ट नहीं होते और गेम की स्टोरी का भी पार्ट नहीं होते। Hmm. तो इसमें क्या होता है कि अगर ये ना हो तो कोई गेम में फर्क नहीं पड़ेगा, गेम चलती रहेगी इन अ वे। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी उसकी फंक्शनैलिटी है या उसकी जो गेम की यूजिबिलिटी है वो थोड़ी हिंडर हो जाए। तो लेट्स फॉर एग्जांपल ऑन द राइट साइड ये GTA 5 का स्क्रीनशॉट है, इसमें हमारे पास एक सिटी का मैप आ रहा है। तो ये ऐसा है कि अगर ये फुल टाइम भी यहाँ ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नॉन डाइजेटिक एलिमेंट होता है और इससे हमारे को इतना खास फर्क नहीं पड़ता गेमिंग के अंदर। लेकिन मिशन में अगर ना हो तो फर्क पड़ता है, तो ये सब्जेक्टिव होता है। उसके अलावा अगर आप किसी पबजी टाइप्स गेम की बात करो तो हमारे पास जब हम पॉज करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वेपन्स आते हैं पॉज स्क्रीन पे कि आपके पास ये एलिमेंट्स अभी हैं, ये वेपन्स हैं, आप यूज कर सकते हो। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन, ये गेम में अगर फुल टाइम भी सामने ना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये नॉन डाइजेक्टिक एलिमेंट्स होते हैं गेमिंग के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, डाइजेक्टिक एलिमेंट, ये वो पार्ट होते हैं गेमिंग के, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल पहले भी डिफाइन की थी। दीज आर दोस पार्ट ऑफ द गेमिंग, दोस पार्ट ऑफ द डिजाइन व्हिच आर द पार्ट ऑफ स्टोरी। कि इन एलिमेंट्स को आपको हमेशा ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि यार ये आपकी स्टोरी में रोल प्ले करेंगे, और इनको इन अ वे डिजाइन करना चाहिए कि इनको यूज करते हुए आपकी जो मेन गेमिंग एक्सपीरियंस है वो हिंडर ना हो। तो जिस तरह थर्मल ग्लास की एग्जांपल दी कि थर्मल ग्लास को आपको हमेशा डिजाइन करना है, वो ऐसे डिजाइन करना है कि यार उसके पीछे जो एलिमेंट है वो हमेशा आपको विजिबल रहे, जिस तरह इस एग्जांपल में हुआ है। तो ये डायजेक्टिक एलिमेंट वो होते हैं कि जो जिनको यूज करने थे, जिनको गेम में यूटिलाइज करने से आपकी स्टोरी चेंज हो सकती है। तो इनको डिजाइन भी ना वे करना चाहिए, इनको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए या इनको कम से कम स्क्रीन स्पेस देना चाहिए ताकि मेन स्टोरी का मसला ना हो। बिकॉज लाइक दीज आर द नॉट द मेन पार्ट ऑफ द गेमिंग, दीज आर जस्ट गेमिंग एड्स। तो ये बात ख्याल रखना चाहिए हमें इनको डिजाइन करते हुए। उसके अलावा आपके पास एक एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप स्पेशल कहते हो।
ये वो एलिमेंट्स होते हैं कि जो गेमिंग स्टोरी का पार्ट नहीं होते लेकिन गेम में एग्जिस्ट करते हैं। और अगेन ये भी एक गेमिंग एड होती है। जिस तरह एग्जांपल मैंने दी थी कि आपके फार्मूला गेमिंग में, फार्मूला वन में आपके पास रेसिंग लाइन्स होती हैं, ना भी हो तो आप गेम खेल सकते हो, और ये एड्स होती हैं और ये गेम स्पेस का पार्ट होती है। स्टोरी में इसका कोई अमल दखल नहीं होता। और इस तरह क्यू क्लब एक गेम होती थी पहले स्नोबर की, जिसमें आपके पास हमेशा जो आपकी क्यू जहाँ एम हो रही होती थी वो आपके पास हमेशा एक लाइन आती थी। तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं और इनको डिजाइन करते हुए पता ख्याल रखना चाहिए कि इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, विजुअल इंपॉर्टेंस, नॉट लाइक अ गेमिंग इंपॉर्टेंस, कि इनको लाइट कलर्स में रखना चाहिए, इनको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, क्योंकि दे आर जस्ट देयर to support you. They are not there to like actually play a part in the story. So these are like special gaming elements. उसके अलावा मेटा गेमिंग एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी गेमिंग ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपने रेजिडेंट एविल खेली हो या गॉड ऑफ वॉर खेली हो, दो एग्जांपल्स मैंने याद दिए हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई और ऐसी गेम खेली हो जो स्ट्रेटजी वाइज हो या कुछ हो, जिस तरह एक मेडल ऑफ ऑनर गेमिंग है, होती थी पहले प्ले स्टेशन पे, तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं कि जहां पर आप बैकग्राउंड्स के थ्रू बताते हो प्लेयर को कि यहाँ कुछ हुआ है पहले, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, कुछ हुआ है। जिस तरह रेजिडेंट एविल में एक एग्जांपल होती थी कि जहाँ ग्लासेस टूटे हुए होते थे और वो शाइन कर रहे थे, दैट मीन अगर आप इनके ऊपर चलोगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी, आपकी लाइफ एंडर हो सकती है, आप प्रॉब्लम हो सकती है, गेमिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। और इसी तरह गॉड ऑफ वॉर में ऐसा होता है कि हमारे पास मेटा एलिमेंट्स वो होते हैं कि जो गेम की स्टोरी ड्राइव करते हैं लेकिन नॉट नेसेसरीली वो गेम में कोई मेन पार्ट प्ले करते हैं। जैसे गॉड ऑफ वॉर में ये होता है कि आपको एक मिशन पूरा करते हो, फिर एक वीडियो आती है जिसमें आपके डायलॉग्स होते हैं प्लेयर्स के और सारी चीजें होती हैं। तो ये वो बैकग्राउंड एलिमेंट होते हैं जो आपकी स्टोरी को ड्राइव करते हैं लेकिन स्टोरी चेंज नहीं करते, आपको ऐसा गाइड करते हैं कि यार ये ऐसे होगा। ये गाइडेंस भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, या विजुअल एड भी हो सकती है। अगर आप किसी जगह गए और ग्लास टूटा हुआ है या आप किसी रेजिडेंट एविल खेल रहे हो तो किसी बॉक्स के ऊपर एक एरो आ रहा है, तो ये बेसिकली आपको गाइड करता है कि यार यहाँ कुछ है। बट उसको करने या ना करने से गेम की स्टोरी चेंज नहीं होती और कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर द मेटा एलिमेंट्स। Awesome. Thank you so much for giving all of these examples and walking us through the different types of games. I really hope this was good, well understood by our audience as well. I'm sure. Um, but so you've already spoken about किस type के games होते हैं and what are the different elements called, how do you Hmm. go about on designing them, and now let's bring it back to like UX. Okay. जैसे एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे कि यूएक्स इसका कैसा होना चाहिए। सो आई मीन यूएक्स लॉज एक ऐसी चीज़ है दैट आई थिंक एवरी यूएक्स डिजाइनर नोज अबाउट, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट user experience laws that we need to keep in mind whenever we are designing a mobile application or a website, any interface. But जिस तरह से हर ऐप के अपने डिफरेंट लॉज होते हैं जो आप फोकस करते हो, वैसे when we design games, what are the different laws that we need to keep in mind जब हम लोग एक गेम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं? So let's talk about that. And if you could just also briefly explain all of these laws. या श्योर। सो बेसिकली जब हम गेम डिजाइन कर रहे होते हैं तो अगेन गेम डिजाइन करना है जैसा इंटरफेस डिजाइन करना, बिकॉज इट्स लाइक एनी अदर इंटरफेस जहाँ अदर ऑडियंस हम उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। सो तीन बेसिकली हमारे यूएक्स के जो 8 लॉज हैं, जितने भी हैं 8-10 लॉज हैं, आई एम फॉरगेटिंग नंबर, सॉरी। इसमें हमारे पास तीन मेन लॉज हैं जो गेमिंग के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला हमारे पास लॉ ऑफ सिमिलैरिटी होता है। सिमिलैरिटी लॉ की हमें डेफिनेशन पता है कि जो सेम नेचर एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा साथ रखने चाहिए। सो गेमिंग में भी हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप कोई कंट्रोल स्क्रीन डिजाइन करते हो तो उसमें अगर आपका कोई वेपन का इंटरफेस है तो उसमें वेपन और उसके बुलेट्स और वो सारी चीजें आप साथ रखोगे। इट्स नॉट लाइक कि एक मेन्यू में वेपन आप सेट कर रहे हो, एक में बुलेट सेट कर रहे हो, इस तरह की चीजें। तो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट आपको हमेशा साथ रखने चाहिए। Mhm. उसके बाद दूसरा हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। उसमें ये होता है कि आपको कंट्रोल्स हमेशा इन अ वे रखने चाहिए कि वो एक दूसरे से करीब हो। Mhm. सही है। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर आप यूजर आपको कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो इन अ वे इस तरीके से करीब होनी चाहिए कि उसको ज्यादा रन ना करना पड़े चीजों के थ्रू और चीजें इजीली स्मूथली रन हो जाए। और उसके अलावा द थर्ड थिंग इज विच इज एस्थेटिक यूजिबिलिटी, कि आपको गेम डिजाइन करते हुए हमेशा ये नहीं करना कि आपका जो प्लेयर है या कुछ है वो हमेशा सामने, उसको अच्छा डिजाइन करना है, बैकग्राउंड वगैरह को अच्छा डिजाइन नहीं करना। नो, इट्स नॉट राइट। क्योंकि प्रोडक्ट दिखने में जितना अच्छा होगा, ग्राफिक्स जितने अच्छे होंगे, उसके कलर्स जितने अच्छे होंगे, तो वो उतना ही लोगों को फील होगा कि यार ये गेम अच्छा है। Right. खेलने के बाद पता चलता है कि यार उसका गेम प्ले कैसा है, उसकी फिजिक्स कैसी है, क्या चीज़ है। क्योंकि लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं फीफा 20 की, तो फर्स्ट टाइम उसमें फीफा 20 और 21 में गेम फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन गेमिंग। तो ग्राफिक्स तो हम सब फीफा के देखते हैं विच इज वेरी गुड और सब चीज़ें।
तो स्टैटिक यूजेबिलिटी वहाँ प्ले कर दिया, ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब गेम प्ले की बात आई तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हुई कि यार ये फिजिक्स क्यों है, बिकॉज उसका ये प्रॉब्लम था गेम फिजिक्स का कि वो रियल लाइफ से उसको बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश की थी, और हमेशा गेमिंग में आपको रियल लाइफ के करीब आना होता है, लेकिन उसको रियल लाइफ बनाना नहीं होता, बिकॉज आपको हमेशा इन दी एंड, क्योंकि आप जब गेम डिजाइन करते हो आपको यूजर को जीतने देना चाहिए गेम में, बिकॉज तभी गेम चलेगी, अगर मुश्किल कर दोगे तो खरीदेगा नहीं। तो हम्म, फीफा का ये प्रॉब्लम हुआ था कि यार आपने कोई अपने कॉम्बिनेशन बनाए कीज का, आप पेनल्टी शूट कर रहे हो, तो एक दफा तो वो गोल हो गया, लेकिन हम्म, अगली दफा उन चीजों पे उस तरीके से गोल नहीं हो रहा, बिकॉज वहां फिजिक्स प्ले कर रही है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हमेशा एक जैसा शॉट बार बार नहीं लगता। तो इन चीजों का ख्याल करना है कि गेम को विजुअली तो अच्छा बनाना है, लेकिन इस बात का भी ख्याल, जस्ट अ साइड नोट अनरिलेटेड टू द गेमिंग यूएक्स लॉस, कि गेम को इन अ वे डिजाइन करना है कि यूजर खेल सकें, जीत सकें, क्योंकि इन दी एंड गेमिंग का मकसद ही यही है। हम्म। सो Yeah, या दैट्स some दैट। really interesting points over here as well. And I think we can really relate it to all of the work that we, as UX designers, do on a daily basis, as well as the theory that we know behind this. Um, ये laws जो है ये सिर्फ like एक वो चीज़ नहीं होती है पढ़ने के लिए, but it's also things that we apply to our work. They या help with users actually understanding the product and being able to interact with it better. तो ये वाली सारी चीज़ें बहुत important है. And I'm really glad that you touched upon that because we can really then connect this with user experience and how we build a better experience for our users, even if it's for game applications. Another really important topic that we need to talk about when we design games, again, since this is something that needs to be inclusive, these applications need to cater to all kinds of people. So let's also talk about accessibility and the role that it plays in game design. या फॉर श्योर। सो जिस तरह आपने यू सेड दिस थिंग कि एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू डिजाइन इंक्लूसिव गेमिंग, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको कलर्स के इश्यूज होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको फ्लैशी लाइट से इश्यूज होते हैं। सो वी नीड टू लाइक कीप दिस थिंग इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द गेमिंग, एंड लाइक ताकि हम मोर एंड मोर ऑडियंस को कैटर कर सकें। तो ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट लाइक फ्यू पॉइंट्स। सबसे Mhm, पहली चीज कि साउंड के थ्रू आप गेम में बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हो, बिकॉज गेम इज नॉट वेरी अ विजुअल थिंग, नॉट अ वेरी इंटरेक्शन थिंग, इट्स अबाउट साउंड्स एज वेल। सो गेम में जब आपने नोट किया होगा कि यार डिफरेंट गेमिंग्स में जब डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट साउंड प्ले होता है, कि अगर बहुत बहुत ज्यादा स्पीडी म्यूजिक होता है दैट मीन्स कोई एक्शन होने वाला है, कोई स्लो म्यूजिक होता है दैट मीन्स कुछ स्टोरी प्ले होने वाली होती है, तो आप साउंड को यूज कर सकते हो टू प्रोजेक्ट द डिफरेंट इमोशंस। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर किसी की आईसाइट हमेशा जैसे सबकी आईसाइट जैसे नहीं होती, तो वो शायद छोटे छोटे एलिमेंट्स ना कवर कर सके, तो आप हमेशा साउंड के थ्रू उनको एड करते हो कि कुछ होने वाला है, और बाय द टाइम डिफरेंट गेम्स खेलने के बाद हमें याद हो जाती है कि यार जब ये म्यूजिक बजेगा तो दैट मीन्स ये होने वाला है, ये होगा तो ये होने वाला है। उसके अलावा टेक्स्ट, ठीक है गेमिंग है, यूजर खुद इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट एड होना हमेशा जरूरी है, आपको बताना जरूरी है कि यार क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये एलिमेंट क्या करता है, एक वॉक थ्रू टाइप चीजें आपको देना जरूरी है। तो mhm, मेक श्योर आपने ये करना है, क्योंकि आपकी गेम में बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको डिजाइन करते हुए आपको टेक्स्ट इन अ वे डिजाइन करना है कि वो बोल्ड हो, उसके कलर्स बैकग्राउंड में ब्लेंड ना हो, और वो अपनी गेमिंग बैकग्राउंड के ऊपर ज्यादा उठ के आए और ज्यादा प्रोमिनेंट हो और विजिबल हो, ताकि किसी भी आईसाइड लेवल के या किसी भी एक्सेसिबिलिटी लेवल के यूजर को पढ़ने में और समझने में प्रॉब्लम ना हो। mhm, उसके अलावा ओवरऑल विजुअल्स में आपको कलर्स का यूज हमेशा करना चाहिए, कि अगर आपका गेम में जिस तरह अगर मैं फर्स्ट पर्सन शूटर गेमिंग की बात करूँ, तो अगर आपको गोली गोली लगती है तो पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता नहीं चल सकता ना गेमिंग में कि आपको कहाँ लगा है, तो दैट मीन्स विजुअल का बड़ा गेम होता है। अगर आपका कोई चीज़ आपने कम्युनिकेट करनी है कि आपकी गेम खराब हो रही है या आप प्रोग्रेस लूज हो रही है, नॉट अ गेम खराब हो रही है, mhm, तो आपने कलर्स डार्क कर देना है। अगर आपने कोई ऐसा एक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपने कलर्स को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देना है। तो इस तरीके से आप विजुअल्स में कलर्स में चीज़ों को आगे पीछे करके भी आप यूजर को कम्युनिकेट कर सकते हो कि यार आपकी गेम में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। उसके अलावा इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स में क्या होता है कि इफेक्ट्स में दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, एक तो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, और अगर आप किसी डिवाइस के थ्रू कर रहे हो या फोन पे खेल रहे हो तो वाइब्रेशन होती है, हैप्टिक फीडबैक्स होते हैं। तो mhm, अगर कुछ गेमिंग्स में आपने देखा होगा, कंसोल गेमिंग में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि आपके हैप्टिक फीडबैक्स आते हैं, आपकी वाइब्रेशन आती है जॉयस्टिक्स में, तो mhm, उनका आपने बड़ा ख्याल रखना होता है, बिकॉज सम टाइम आप गेमिंग में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ कोई चीज़ें हो रही हैं गेम में, या क्योंकि ज़ाहिर है एक साथ बहुत चीज़ों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, तो आपको यूजर को कम्युनिकेट करना होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक लाइटिंग,
या इन टर्म्स ऑफ हैप्टिक फीडबैक या वाइब्रेट करना है, डिवाइस वाइब्रेट करना है, कुछ करना है ताकि यूजर डिसीजन ले सके और इजीली गेम को परफॉर्म कर सके। सो Yeah. एक्सेसिबिलिटी में इस तरह की चीज़ों को हमें कवर करना होता है, एंड हमेशा ही मेक श्योर करना होता है कि अगर आपकी गेम में बहुत ज़्यादा फ्लैशी लाइट्स हैं या Mhm. बहुत ज़्यादा ब्लड शेड है, तो आपको नोटिस देने हैं, आपको बताना है कि ये गेम इस तरह की है और ये चीज़ें हैं, ताकि जो लोग इन चीज़ों को नहीं कैटर कर पाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता है इसको कॉम्प्लीमेंट करना, तो वो गेम को उसी हिसाब से फिर अप्रोच करें। सो दैट्स दैट। आई थिंक एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया था अबाउट preparing the users, and that is really important. That also comes under accessibility as well, कि ज़रूरी नहीं है कि inclusive एक हम जब डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें तो उसमें हम like visual aids उस तरह से ही दें कि we're catering to like different kinds of people and we want it to be usable to all of them, but ऐसी भी चीज़ें होती हैं, some people might have some sort of like a panic thing, or they might be very anxious people, but that shouldn't restrict them from playing games, right? तो उन लोगों को हम prepare किस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से you spoke about music change हो जाती है, so you were sort of like announcing that there is something differently that's gonna happen now, and जितनी भी टेक्स्ट हम लोग दिखा रहे होते हैं, ट्यूटोरियल्स या उस तरह की चीज़ें, although super important for new users, लेकिन making them like possible for users to skip it, maybe because they might have played this before, maybe they are in a hurry, maybe they're just not the patient kind of people. So giving these kind of options, they also come under accessibility as well, and हाँ, making the overall experience better for our users. उसके अलावा ये एक्सेसिबिलिटी का सबसे बड़ा रोल भी ये होता है कि आपके जॉयस्टिक्स के पैसे बचते हैं, बिकॉज यू डोंट ब्रेक जॉयस्टिक्स अगर आपको टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। या Hmm. बैड जोक बट वर्क्स है ऑलवेज। All right. So, again, any closing notes that you want to start with? I think या overall it went really well, but I want to hear from you before. सो ओवरऑल लाइक गेम डिजाइन करना, क्लोजिंग नोट्स यही है कि यार आपने कभी भी इस चीज को ऐसे अप्रोच नहीं करना कि यार आपको गेम डिजाइनर बनने के लिए ना कोई एडिशनल कोई एक्स्ट्रा ऐसी नॉलेज चाहिए, कोई ऐसी ये रॉकेट साइंस है जिसको मुझे सीखना है गेम डिजाइन करने से पहले। इट्स जस्ट सिंपल, काइंड ऑफ अ डिफरेंट, क्योंकि इंट्रैक्शन ही है इन द एंड। और इन अ वे और आइदर आप यूएक्स लॉज पढ़ते हैं, जो भी चीजें पढ़ते हैं, तो वो लॉज वगैरह यूनिवर्सल होते हैं, वो हर जगह अप्लाई होते हैं, तो गेमिंग में भी अप्लाई होते हैं। जस्ट आपके टूल्स डिफरेंट होते हैं, आपकी अप्रोचेस डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, लेकिन इन दी एंड अगर मैं कहूँ कि ट्रांजिशन करना फ्रॉम अ प्रोडक्ट डिजाइनर टू द गेम डिजाइनर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इट्स लाइक कि आपको चीजें समझनी है और ऑल्सो आपको विजुअल में अच्छा होना है, बिकॉज गेमिंग आर मोर रिलेटेड टू विजुअल, इट्स नॉट द प्रोडक्ट। तो अगर आपकी Mhm. ड्राइंग अच्छी है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हो, स्केच अच्छा करते हो, सो इट्स अ वेरी हाई चांस दैट यू will become a good game designer in terms of visuals and all. Otherwise, the closing note it's just similar कि यार ये कोई rocket science नहीं है. It's just something जो same law से ही बनती है और आप सीख सकते हो. Nothing very difficult. So yeah. Yeah. So yeah, I think that that went really, really well, and I hope that our viewers like that as well. We had a very interesting and very different kind of a discussion on game design, something that is very close to my heart as well. And I hope के काफी जो viewers हैं, they will also like this and वो और भी हमें ideas देंगे. So guys, if you liked this video, do subscribe and like our YouTube channel Venture Dive and Daira. And Dara के social media pages भी हैं on YouTube as well as sorry on Facebook as well as on Instagram. Please go follow us because हम लोग अब इस तरह से podcasts को live run करेंगे. So you can always catch us live, but you can of course watch these videos later on as well. But if you guys have any ideas for any topics that you want us to discuss around UX, then please give us those suggestions. Just post a message on our Facebook channels, or maybe interact with our Instagram posts, and we'll be happy to talk more about the topics that interest you. So again, thank you guys so much for watching. Thank you, Temur, so much for attending. It was Thanks for having me. yeah, it was lovely having you here on this podcast, and it was really nice and interesting talking about this topic. So until next time, thank you guys and take care. Allah Hafiz. Thank you everyone. Love this.